یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ ایک قتل صرف ایک پوری قوم کے لیے ایک آفت ہے، اور اگر قتل کسی انتہائی فضول وجہ سے ہو تو واقعی افسردگی کا عالم ہے۔ دل ٹوٹ جاتا ہے، انسانیت سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آج کا سچا قصہ آپ کے خیالوں میں، آپ کی سوچوں میں کڑواہٹ چھوڑ دے گا، کیونکہ یہ کیس ایک ایسی پرجوش اور ذہین خاتون کے بارے میں ہے جس کو دنیا میں بہت کچھ اچھا کرنے کی آرزو تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کی زندگی ظالم طوفان میں بجھ گئی۔ یہ ہے ڈینیز اونیل کی کہانی۔ ڈینیز اونیل 25 فروری 1967 کے دن امریکی ریاست نیو جرسی کے شہر مونٹ کلیئر میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ این اور لیری اونیل کی 3 بیٹیوں میں سب سے بڑی تھی۔ این اور لیری آئرلینڈ سے امیگریٹ کر کے امریکہ آئے تھے اور وہ چھوٹے ریسٹورانٹس چلاتے ہوئے ملک بھر کی سیر کر رہے تھے۔ ڈینیز کی ماں کا کہنا تھا کہ ڈینیز بچپن سے بہت میچور اور سمجھدار تھی۔ اس سے کہانی کی کتابیں پڑھنا بہت پسند تھی۔ اپنے اسکول میں ساری ٹیچرز کی چہیتی تھی۔ ڈینیز خود تو پڑھائی میں تیز تھی اور ہمیشہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتی تھی، لیکن اسے چھوٹی بہنوں سے بھی یہی توقعات تھی۔ ڈینیز کو ٹریولنگ، سوئمنگ، اسکوبا ڈائیونگ اور گھوڑا سواری کا شوق تھا۔ کسی بھی نئی ایڈونچر کے لیے وہ آگے آگے رہتی تھی۔ میوزیمز کی سیر اور آرٹ کی نمائشوں میں اس کا بہت دل لگتا تھا۔ ڈینیز اپنے خاندان میں یونیورسٹی جانے والی پہلی فرد تھی۔ 1989 میں یونیورسٹی آف سان ڈیئگو سے گریجویشن کرنے کے بعد وہ بوسٹن کالج سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرتی ہے۔ ڈینیز کو تعلیم اور بچے بہت پسند تھے، لہٰذا کسی کو بھی تعجب نہیں ہوا جب اس نے ٹیچر بننے کا ارادہ کیا، کیونکہ ڈینیز کے لیے فلوریڈا میں گزاری بچپن کی چھٹیاں بہت حسین اور یادگار تھی۔ وہ اگست 1992 میں ویسٹ پام بیچ، فلوریڈا منتقل ہو جاتی ہے۔ والدین سے کوسوں میل دور اپارٹمنٹ کرائے پر لیتی ہے اور ٹیچنگ کی نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ اپنے اخراجات اور بلز کی ادائیگی کے لیے وہ شہر کے مہنگے اور معروف ریسٹورانٹس میں کام کرتی ہے۔ جولائی 1995 ڈینیز کو ابھی تک کسی اسکول میں پوزیشن نہیں ملی تھی، البتہ اس کا ٹیچنگ کا خواب ٹوٹا نہیں تھا۔ والدین نے اسے واپس آ جانے کا کہا۔ ان کی رائے تھی کہ فلوریڈا کنواری اکیلی لڑکی کے لیے ایک محفوظ جگہ نہیں ہے، پر بیٹی نے ان کو تسلی دی کہ وہ اپنی زندگی سے خوش تھی۔ بعض اوقات وہ گھر کی 4 دیواری میں کتابیں پڑھتے ہوئے یا کلاسیکل میوزک سنتے ہوئے گزارتی تھی۔ اس نے ایک ہیلتھ کلب میں داخلہ لیا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ ٹینس اور گولف بھی کھیلتی تھی۔ اس نے اپنی ماں این سے کہا تھا، میں اپنی زندگی مکمل طور پر جینا چاہتی ہوں، ڈر کر نہیں۔ 15 جولائی 1995 ڈینیز چارلیز کریب ریسٹورانٹ میں کام کر رہی تھی۔ وہ ایک محنتی، بھروسے مند، وقت کی پابند ملازم تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ اپنی شفٹوں پر لگاتار 2 دن تک نہیں آئی اور اس نے فون کر کے اپنی اطلاع نہیں دی تو ریسٹورانٹ مینیجر کو بہت تشویش ہوئی، اور وہ پولیس اسٹیشن فون کر کے کہتا ہے، میرے ریسٹورانٹ کی ایک ویٹریس ہے، 2.5 سال سے یہاں کام کر رہی ہے، کبھی اس نے چھٹی نہیں کی، مگر 13 جولائی جمعرات کی شام سے وہ فون تک نہیں اٹھا رہی ہے۔ ریسٹورانٹ مینیجر پولیس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ ڈینیز کی خیریت معلوم کریں۔ 2 پولیس افسران کو ویلفیئر چیک کے لیے کلیئر لیک کالونی اپارٹمنٹ کمپلیکس بھیجا جاتا ہے۔ ڈینیز کی گاڑی، سفید رنگ کی شیورولیٹ کیویلیئر کوپ، پارکنگ لاٹ میں موجود نہیں تھی۔ ڈینیز کے اپارٹمنٹ کا نمبر 738 تھا۔ دروازے پر دستک دیتے ہیں، کوئی جواب نہیں ملتا۔
وہ بلڈنگ مینیجر سے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلواتے ہیں. گھر میں کوئی چوری یا کوئی غیر قانونی سرگرمی پیش نہیں آئی تھی. اپارٹمنٹ انتہائی صاف ستھرا تھا. ڈیٹیکٹیو بل فریزر نے یہ تک کہا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی. بہت سلیقے اور پیار سے گھر کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا. پولیس افسران غور کرتے ہیں کہ فون آنسرنگ مشین کی لائٹ ٹمٹما رہی تھی. وہ آنسرنگ مشین کے میسیجز سنتے ہیں. ڈینیس کو اس کے بینک اور کریڈٹ کارڈ کمپنی سے کئی پیغام موصول ہوئے تھے جس میں اسے الرٹ کیا جا رہا تھا کہ اس کے ویزا کریڈٹ کارڈ پر کچھ غیر معمولی اخراجات ہو رہے تھے. چند گھنٹے بعد ایک پیٹرول سارجنٹ کو ڈینیس کی گاڑی ملتی ہے. اس کے اپارٹمنٹ کمپلیکس سے کچھ فاصلے پر. دیکھتے ہی محسوس کیا گیا کہ حال میں گاڑی کے اندر ڈینیس کے علاوہ کوئی اور بیٹھا تھا. ڈینیس بہت تمیزدار صفائی پسند عورت تھی. یقیناً گھر جس ٹپ ٹاپ حالت میں رکھتی تھی ویسے ہی گاڑی کا بھی خیال رکھتی ہوگی، لیکن گاڑی گندی تھی. ڈینیس کی گلابی جیکٹ لاپرواہی سے پچھلی سیٹ پر پھینک دی گئی تھی. 2 سوڈا کی بوتلیں گاڑی کے فرش پر پڑی تھیں. ڈرائیور سائڈ پر سگریٹ کا ٹوٹا ملا، حالانکہ ڈینیس کو تو تمباکو نوشی کی عادت نہیں تھی. ڈیٹیکٹیو گلین بکاٹا غور کرتا ہے کہ پچھلی دائیں سیٹ کے نیچے سفید ریت تھی. سوچا جا سکتا ہے کہ فلوریڈا میں 1000 ساحل سمندر ہیں، بیچز ہیں، ریت تو ہر جگہ ملے گی نا. لیکن یہ خاص ریت بھوری سمندری ریت نہیں تھی، نہ ہی کیچڑ والی مٹی تھی. فورینزک ٹیم ریت کو ویکیوم کے ذریعے اکٹھا کرتے ہیں اور اس کا معائنہ کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اس میں چونا یعنی لائم سٹون تھا. فورینزک ٹیم گاڑی پر پائے گئے ہر فنگر پرنٹ کو ریکارڈ کرتے ہیں. تقریباً 20 مکمل فنگر پرنٹس ملتے ہیں گاڑی کی کھڑکیوں پر، اندر باہر ڈگی پر. گاڑی کی ڈگی میں یہ چند چیزیں ملی: ایک تکیے کا غلاف، ایک گتے کا ڈبہ جس میں ڈینیس کی تمام سال بھر کی خریداری کی رسیدیں تھیں، ایک گلابی پلاسٹک کا ٹوکرا جو ڈینیس کے دھلے ہوئے کپڑوں سے بھرا تھا، کالے ریباک جوتے ڈینیس کے سائز میں، رسید سمیت. رسید سے صاف واضح ہوا کہ جس دن سے ڈینیس غائب ہوئی تھی 13 جولائی 1995 کو اس نے جوتا دوپہر بعد 2:36 پر خریدا تھا. ڈینیس کی ریسٹورانٹ کی شفٹ 5:30 بجے شروع ہوتی تھی، لیکن وہ نوکری پر پہنچ نہ سکی. ڈیٹیکٹیوز نے اس سے اندازہ لگایا کہ 2:36 اور 5:30 بجے کے درمیان کے وقت میں ڈینیس کے ساتھ کوئی سنگین حادثہ یا جرم پیش آیا تھا. اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہنے والوں سے پولیس پوچھ گچھ کرتی ہے. کسی نے کچھ مشکوک ہوتے ہوئے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا. کچھ ہی گھنٹے بعد کسی نے ڈینیس کا بینک کارڈ استعمال کیا، ATM سے $700 نکالے. افسوس کہ CCTV کیمرے کا لینس خراب تھا. ویڈیو بہت دھندلی تھی. اس شخص کی شناخت مشکل کیا ناممکن تھی. اسی دن تقریباً 45 میل دور کورل سپرنگ شہر میں ایک عورت اپنی فیملی کے ساتھ فشنگ کر رہی تھی کہ اسے C14 کینال نامی نہر میں ایک لاش نظر آئی. عورت 911 ڈائل کر کے مقامی پولیس کو اطلاع دیتی ہے. لاش گلابی رنگ کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی. چادر کو ایک لیدر بیلٹ اور 2 عجیب الیکٹریکل تاروں سے باندھا گیا تھا. لاش کے ہاتھ اور پاؤں کئی چیزوں سے باندھے گئے تھے، جوتے کی لیسز سے، ایک کتے کی رسی سے یعنی ڈاگ لیش سے. کرائم سین اینالسٹ سارجنٹ سٹوارٹ موشر پوسٹ مارٹم اور ڈینٹل ریکارڈز کے ذریعے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ لاش ڈینیس اونیل کی تھی. اسے ریپ کیا گیا تھا اور موت گلا گھونٹنے کی وجہ سے وارد ہوئی تھی. قاتل کا DNA ڈینیس کے جسم پر پایا گیا، لیکن DNA نیشنل کرمنل ڈیٹا بیس میں پہلے سے موجود نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے اس حادثے نے ڈینیس کے گھر والوں کو صدمے اور غم میں ڈبا دیا. قتل کی خبر میڈیا میں پھیل گئی. پورے شہر میں کھلبلی مچ گئی. سب خوفزدہ تھے. 28 سالہ نوجوان لڑکی کا قتل یہ ایک بہت پریشان کن واقعہ تھا. ہر کسی نے سوچا اگر اس لڑکی کو مار دیا گیا تو ہم بھی کہیں محفوظ نہیں.
पुलिस डिपार्टमेंट पर बहुत दबाव डाला गया। उन्हें मुजरिम को जल्द से जल्द ढूंढने का हुक्म दिया गया। डिटेक्टिव्स इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और चंद अहम सबूतों पर रोशनी डालते हैं। 1. डेनीस को गुलाबी चादर में लपेटा गया था और चादर 2 इलेक्ट्रिकल तारों से बांधी गई थी, लेकिन डिटेक्टिव ग्लेन बुकाटा नहीं जानता था कि इलेक्ट्रिकल तारें किस काम आती थीं, क्योंकि उनके साथ प्लास्टिक के पत्थर जुड़े थे। तहकीक करने पर पता चला कि ये हीट रॉक्स थे। हीट रॉक्स अमूमन पिंजरों या एक्वेरियम में गर्मी पैदा करने के लिए रखे जाते हैं, खास तौर पर उन जानवरों के लिए जिन्हें कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल कहा जाता है, जैसे गिरगिट, छिपकली, सांप या कछुआ। 2. गुलाबी चादर पर चंद काले बाल लगे थे। माइक्रोस्कोप के नीचे वाज़े हुआ कि ये बाल किसी इंसान के नहीं थे, बल्कि एक कुत्ते के बाल थे। 3. लाश पर पाई गई लेदर बेल्ट का कमर का साइज 36 था। 4. डेनीस की गाड़ी में मौजूद रेत C14 खनाल के करीब पाई जाने वाली रेत जैसी थी। ये इस बात का सबूत था कि डेनीस की लाश को खनाल तक उसकी गाड़ी में लाया गया था। डिटेक्टिव बुकाटा का मानना था कातिल काले कुत्ते का मालिक होगा, कातिल के पास कोई पालतू रेप्टाइल होगा, कातिल 36 साइज की बेल्ट पहनता होगा। इत्तेफाक से एक दिन इन्वेस्टिगेटर्स टीवी न्यूज़ पर कुछ अजीब देखते हैं। डेनीस का एक पड़ोसी बार बार टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा था। वो तवज्जो का भूखा था, शिद्दत से कैमरे के सामने आना चाहता था। एक टीवी इंटरव्यू जिसे डेनीस की लाश मिलने से पहले टीवी पर नशर किया गया था, आदमी सहाफ़ी से कहते हुए नजर आया, वो बहुत खामोश थी। मैंने उससे एक दिन हेलो कहा था, उसने जवाब तक नहीं दिया। वो ज़्यादा किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी। डिटेक्टिव्स को ये बात मशकूक लगी। उस वक्त डेनीस सिर्फ लापता थी, उसकी लाश मिली नहीं थी, लेकिन आदमी लगातार माजी में डेनीस का जिक्र कर रहा था जैसे कि वो मर चुकी हो। आदमी का नाम लुइस कैबलेरो था और उसका अपार्टमेंट डेनीस के अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने था। 21 साला लुइस कैबलेरो बेरोजगार था और वो कभी कभार लोगों की गाड़ियां धोकर अंदर से साफ करके थोड़े पैसे कमा लेता था। डिटेक्टिव बुकाटा अपार्टमेंट 737 की घंटी बजाता है। काफ़ी देर तक वो दरवाज़ा खटखटाता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता, सिवाय एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है। एक खिड़की के जरिए डिटेक्टिव्स को कुत्ता नजर आता है। वो एक काले रंग का छाओ कुत्ता था। डिटेक्टिव्स ने एक और पड़ोसी से लुइस कैबलेरो के बारे में पूछा। आदमी ने कहा, ओह वो मोटा लड़का जिसके पास कुत्ता और सांप है। डिटेक्टिव बुकाटा और डिटेक्टिव फ्रेजर का कहना है कि ये सुनकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। लुइस कैबलेरो को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछगछ की जाती है। वो डेनीस के कत्ल से कोई ताल्लुक रखने से इनकार करता है। उसकी बातों से डिटेक्टिव्स को अंदाज़ा हुआ कि लुइस डेनीस से चिढ़ता था। लुइस ने उनसे कहा, वो तो बहुत मगरूर थी, किसी को मुंह तक नहीं लगाती थी। मेरा उस घाटी औरत से कोई लेना देना नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स ने दरियाफ्त किया कि लुइस के माली हालात ख़राब थे। $24,000 कर्जा मुख्तलिफ क्रेडिट कार्ड्स पर चढ़ा हुआ था। उसके घर का फ़ोन बिल $6,000 का था, क्योंकि लुइस कैबलेरो को फ़ोन सेक्स लाइंस इस्तेमाल करने की लत पड़ी थी। लुइस ने चंद महीनों से अपार्टमेंट का किराया तक नहीं दिया था और वो किसी भी वक्त बेघर हो सकता था। डिटेक्टिव सर्च वारंट हासिल करके लुइस के अपार्टमेंट की छानबीन शुरू करते हैं। डिटेक्टिव फ्रेजर को कमरे की अलमारी में बड़ी तादाद में फहाश मैगजीन्स मिलते हैं। अपार्टमेंट में डेनीस का कोई फिंगरप्रिंट नहीं था, लेकिन सार्जेंट स्टुअर्ट मोशर ने दूसरे अहम सुराग दरियाफ्त किए। बेडरूम में एक कांच का विवेरियम था जिसमें एक बोआ कंस्ट्रिक्टर सांप था। हरे घास नुमा कालीन पर 2 निशानात थे जिनके नक्श डेनीस की लाश पर पाए गए हीट रॉक्स जैसे थे। लुइस के कमरे के क्लोजेट में काले रंग के पुराने जूते पड़े थे। दोनों जूतों की शू लेसेस गायब थे। याद रखिए, डेनीस के हाथों को शू लेसेस से बांधा गया था।
बेडरूम के कालीन पर एक लाल भूरा दाग था। मुमकिन था कि वो खून का धब्बा था। डिटेक्टिव्स उस निशान पर लूमिनॉल स्प्रे करते हैं क्योंकि ये केमिकल खून में मौजूद प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है। कमरे में लाइट बुझा दी जाती है और फौरन वो जगह चमकने लगी। और तो और अपार्टमेंट से एक कैंची बरामद हुई जिसमें बारीक नीले कपड़े के रेशे थे। इन फाइबर्स को उस ब्लाउज के कपड़े से मैच करते हैं जो डेनीस ने मौत के वक्त पहना हुआ था। हालांकि लुइस के खिलाफ सबूत की फहरिस्त बढ़ती जा रही थी, वो फिर भी यही कह रहा था कि डेनीस तो मेरे अपार्टमेंट में कभी दाखिल ही नहीं हुई है। जल्द ही एक और सबूत मिला। लुइस के कमरे में गत्ते के एक डब्बे के नीचे डिटेक्टिव्स को जिम मेंबरशिप का एक कार्ड मिला। सार्जेंट मोशर ने कार्ड उठाकर पलटा। उस पर डेनीस ओ'नील का नाम लिखा था। डिटेक्टिव फ्रेजर का कहना है, मैं ये बात साबित तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि डेनीस ने जानबूझकर अपना कार्ड डब्बे के नीचे छुपाया था। उसे बचने की उम्मीद शायद नहीं थी। उसने सोचा होगा, अगर मैं मार दी जाऊं तो अपने कातिल को छोड़ूंगी नहीं, पकड़वाऊंगी जरूर। लुइस को डेनीस का जिम मेंबरशिप का कार्ड दिखाते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने डेनीस की गाड़ी कभी साफ की थी या उसकी गाड़ी में कभी तुम बैठे हो? उसका जवाब था कि उसने डेनीस की गाड़ी कभी छुई तक नहीं। डिटेक्टिव्स लुइस कैबेलेरो को बताते हैं कि उसके फिंगरप्रिंट्स डेनीस की गाड़ी के अंदर और बाहर मिले थे। उसे इस सबूत का सामना करना पड़ा और उसने अपनी कहानी बदल दी। लुइस अब दावा कर रहा था कि कातिल उसका दोस्त 19 साला आइजैक ब्राउन था। आइजैक ब्राउन एक बेरोजगार सिक्योरिटी गार्ड था जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, और जब उससे पूछगछ की गई तो उसने सारा इल्जाम लुइस पर ढकल दिया। कहा लुइस को पैसों की सख्त ज़रूरत थी और वो कई महीनों से डेनीस को लूटने का प्लान बना रहा था। डेनीस के अपार्टमेंट की तरफ इशारा करके कहता था, ये मुर्गी बहुत अमीर है, मैंने इसे अपना किराया भी नकद कैश देते हुए देखा है। लुइस आइजैक को और आइजैक लुइस को कसूरवार ठहराता गया। डिटेक्टिव्स के पास आइजैक ब्राउन के खिलाफ भी सबूत थे। डेनीस की गाड़ी में सोडा की बोतल पर आइजैक ब्राउन के फिंगरप्रिंट्स मिले। आइजैक ब्राउन और लुइस कैबेलेरो दोनों इस केस में मुलव्विस थे। अलबत्ता एक बात डिटेक्टिव्स को खटक रही थी। 36 साइज की लेदर बेल्ट जो लाश पर पाई गई थी ना लुइस की हो सकती थी क्योंकि वो बहुत मोटा था, और आइजैक की भी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो बहुत दुबला था। अलमारी में मौजूद काले जूतों का भी यही हाल था, वो लुइस या आइजैक को फिट नहीं कर सकते थे। पुलिस अफसरान घंटों तक दोनों लड़कों को इंटरव्यू करते हैं, अगरचे उनका बयान बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने एक बात पर इत्तेफाक किया, डेनीस की लाश को नहर में फेंकने के बाद लुइस और आइजैक एक साथ नाश्ता करने गए थे। शहर टैमराक में वो आई हॉप नामी रेस्टोरेंट में रुके थे। ऑमलेट्स और पैनकेक्स ऑर्डर किए थे। डिटेक्टिव बुखाटा वो रेस्टोरेंट जाकर उनकी रसीद निकलवाता है। रसीद के ऊपर के हिस्से में वेट्रेस ने उस टेबल पर खाने वाले लोगों की तादाद लिखी थी। खाने वाले 2 नहीं थे। वेट्रेस ने लिखा था कि 3 गाहक थे। क्या डेनीस के कत्ल में 3 अफराद मुलविस थे? अगर कोई तीसरा मुजरिम था? लुइस और आइजैक इस मामले में चुप हो गए। लगता था कि कातिलों के पास थोड़ा इखलाक यानी मोरल कोड था। वो अपने दोस्त से गद्दारी नहीं करना चाहते थे, या उन्होंने इस अंग्रेजी कहावत स्निचेस गेट स्टिचेस एंड एंड अप इन डिचेस पर अमल किया। जो गैंग मेंबर्स, मुजरिम या कैदी किसी का राज फाश करते हैं उनके साथ बुरा होता है। उन्हें या तो मारा पीटा जाता है या कत्ल कर दिया जाता है। प्रोसिक्यूटर चक मॉर्टन का कहना था कि तीसरा बेनाम फर्द अदालती केस के लिए रुकावट बन सकता था। लुइस कैबेलेरो और आइजैक ब्राउन के दिफाई वकील कह सकते थे कि असली मुजरिम पकड़ा नहीं गया है, तीसरा आदमी ही कातिल था। लुइस और आइजैक तो सिर्फ तमाशाई थे। तीसरे आदमी को तलाश करना बहुत ज़रूरी था।
पुलिस अफसरान लुइस के क्रिमिनल रिकॉर्ड से दरियाफ्त करते हैं कि 1 माह पहले वो गाड़ी चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। इस जुर्म में उसका साथी एक रॉबर्ट मैसर नामी नौजवान था। 20 साला रॉबर्ट मैसर के फिंगरप्रिंट्स फाइल पर पहले से मौजूद थे। फोरेंसिक टीम को रॉबर्ट के फिंगरप्रिंट्स डेनीस की गाड़ी में पाए गए प्रिंट से मिलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। रॉबर्ट मैसर को गिरफ्तार किया गया और इंटरोगेशन रूम में उसने अपने 2 साथियों की तरह अपने आप को बेगुनाह करार दिया। उसने डिटेक्टिव बुकाटा से कहा, मैंने उसे कत्ल नहीं किया है। मैं आपको बताता हूँ कि असल में क्या हुआ था। मैं वहाँ था, मैंने सब देखा है। लेदर बेल्ट और जूते मेरे हैं, लेकिन लुइस और आइजैक उस लड़की के कातिल हैं। इस वक्त तक DNA टेस्ट का नतीजा वापस आ गया था। उन तीनों में से सिर्फ एक आदमी लुइस कैबेलेरो डेनीस के रेप से मुंसलिक था। आखिर उस दिन क्या हुआ था? फोरेंसिक सबूत और पूछगछ की बुनियाद पर डिटेक्टिव्स का कहना है कि 13 जुलाई जुमेरात की शाम 5 बजे 28 साला डेनीस ओ'नील बिल्डिंग के लॉन्ड्री रूम से धुले हुए कपड़ों से भरी टोकरी अपने अपार्टमेंट नंबर 738 में ले जा रही थी। आधे घंटे में उसकी चार्लीज क्रैब रेस्टोरेंट में शिफ्ट शुरू होने वाली थी। गली के उस पार अपार्टमेंट 737 में लुइस कैबेलेरो और आइजैक ब्राउन पड़ोसन डेनीस को अगवा करने की साजिश कर रहे थे। जब डेनीस ने अपने अपार्टमेंट में दाखिल होने के लिए दरवाज़ा खोला तो लुइस और आइजैक ज़बरदस्ती उसके घर में घुस गए। उन्होंने डेनीस का पर्स पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने अपार्टमेंट में ले गए। लुइस ने डेनीस को मार मार कर क्रेडिट कार्ड और बैंक कार्ड का पिन नंबर देने पर मजबूर किया। फिर दोनों लड़कों ने डेनीस के मुंह पर पट्टी बांधी, हाथ पांव बांधे। आइजैक को डेनीस की चौकीदारी के लिए छोड़कर लुइस बैंक से पैसे निकालने के लिए भागा। वापसी में वो रॉबर्ट मैसर को अपनी गाड़ी में बिठाता है। मौके की ताक में डेनीस ने किसी तरह अपना जिम मेंबरशिप का कार्ड एक कार्डबोर्ड डब्बे के नीचे छुपा दिया। लुइस के अपार्टमेंट में अपनी मौजूदगी का सबूत छोड़ गई। लुइस रॉबर्ट के साथ अपार्टमेंट लौट आता है। लुइस डेनीस को रेप करता है। हीट रॉक्स के इलेक्ट्रिकल तारों का इस्तेमाल करके डेनीस का गला घोंट देता है। तीनों मर्द डेनीस की लाश को चादर में लपेटते हैं। रॉबर्ट की बेल्ट और शू लेसेस और हीट रॉक के तारों से गुलाबी चादर को टाइट कर देते हैं। डेनीस की गाड़ी में लाश डालकर वो नहर तक जाते हैं और उसकी लाश पानी में फेंक देते हैं। आखिर में बेशरम जालिम लड़के आई हॉप में रुककर नाश्ता करते हैं। तीनों आदमियों को एक एक करके इंसाफ का सामना करना पड़ा। रॉबर्ट मैसर को मैनस्लॉटर कत्ल का मुजरिम करार दिया गया और उसे 15 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। सिर्फ 5 साल सज़ा काटने के बाद पैरोल पर वो रिहा कर दिया गया। आइजैक ब्राउन को 2nd डिग्री कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा दी गई। लुइस कैबेलेरो को अगवा और कत्ल का मुजरिम पाया गया और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन ने मीडिया में ऐलान किया कि 13 सितंबर 2013 को लुइस कैबेलेरो की मौत कैंसर की वजह से वारिद हुई है। डेनीस की मां एन ओ'नील ने अखबार द पाम बीच पोस्ट को ये बयान दिया, मुझे और मेरे शौहर लैरी को लुइस कैबेलेरो की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उस पर हर रोज लानत भेजी है और मरते दम तक उसे कोसती रहूंगी। दोस्तों, ये थी डेनीस ओ'नील की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना